کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکراللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے۔ انسان اگر سکون سے رہنا چاہے تو اس کو پہلے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے لوگوں، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، اے لوگوں کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے وہ تو مٹ جائیں گے، مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، قرآن پاک کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے وہ تو مٹ جائیں گے، مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ پوری دنیا جو ہے ایک دن ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والا خدا کی ذات ہے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے وہ تو مٹ جائیں گے، مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، قرآن کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا۔ پہلے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی جگہ ہے صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق اخلاق وفا شان نہ جانے دینا، عشق اخلاق وفا شان نہ جانے دینا، عشق اخلاق وفا شان نہ جانے دینا، ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دینا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بچ کے رہے گا تو پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو پھر اس جان کی کوئی قیمت لگائی نہیں جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ہیں، کفار و مشرکین نے گھیر لیا، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، وہاں پر دیوانہ ابو بکر صدیق موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی سامنے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب تک یہ آپ کا دیوانہ رہے گا تب تک آپ پر جان قربان کرتا رہے گا۔ آؤ ہمیں ابو بکر صدیق نے کیا سبق دے دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ لوگوں، نبی پاک کے نام پر قربان ہونا یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ ابو بکر صدیق دائیں کیوں جاتے تھے، بائیں کیوں جاتے تھے، آگے کیوں آتے تھے، پیچھے کیوں جاتے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ جان کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ایمان بڑی چیز ہے، ایمان بچ کے رہے گا تو پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو پھر اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ قبر میں پہنچیں گے، کیڑے مکوڑے کا خوراک بن جائے گا، اگر ایمان سلامت ہے تو وہاں جسم بھی سلامت رہے گا۔ اے لوگوں، آج اپنے گھر بناتے ہو، مکان بناتے ہو، طرح طرح کے اس میں ڈیزائن دیتے ہو، اس کو سوارتے ہو، سجاتے ہو، ذرا اس گھر کی بھی فکر کرو جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہمیشہ اکیلے تنہا رہنا ہوگا، اس گھر کے طرف ذرا دھیان لگاؤ کہ ہم وہاں کیسے رہیں گے، اس کے لیے ہم نے تیاری کیا کر کے رکھا ہے، وہاں کے لیے ہم نے تیاری کیا کیا ہے، اس پر غور کیجئے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں آئے ہیں، ایمان بچا کے لے کے جائیے گا تبھی کامیاب ہے، ایمان اگر بچ کے نہیں گیا پھر کوئی کامیابی کی زندگی نہیں ملے گی۔
अबू बकर सिद्दीक कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब तक ये दीवाना रहेगा तब तक आप पर जान कुर्बान करता रहेगा। या रसूल अल्लाह, हम पीछे इसलिए आते हैं, पीछे से किसी जालिम का वार ना हो। या रसूल अल्लाह, हम तो सामने इसलिए आते हैं कि पहले लगे तो अबू बकर सिद्दीक के सीने को लगे, आपको ना लगे। या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक ने वहीं पे जवाब दे दिया है, ऐ लोगों, नबी पाक के नाम पर अगर कुर्बान हो गए होते तो यकीनन मेरे मुअज्जज़ सामिन किराम हमेशा के लिए बेड़ा पार हो गया होता। नबी पाक के नाम पर कुर्बान होना यही असल जिंदगी है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ लोगों, अगर नबी की मोहब्बत में अगर हम कुर्बान हो गए होते तो हमेशा के लिए बेड़ा पार हो गया होता। ऐ मेरे दोस्तों, आज हमें आपको भी जरूरत है कि नबी के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, अपने रसूल के कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। मेरे रसूल ने जो फरमाया है उस पर अमल करने की जरूरत है, और जो सच्चे दिल से अमल करते हैं उसी का बेड़ा पार। शायर कहते हैं कि इश्क़ इख़लाक़ वफ़ा शान न जाने देना, हम मुसलमान हैं ईमान न जाने देंगे। और अगला शेर देखिए, कोई सुन्नी भला दोज़ख के तरफ क्यों जाए, कोई सुन्नी भला दोज़ख के तरफ क्यों जाए, गौस ख्वाजा रज़ा खान न जाने देंगे, गौस ख्वाजा रज़ा खान न जाने देंगे। मेरे दोस्तों, हमेशा इस बात की परवाह कीजिए कि जो जिंदगी मरने के बाद शुरू होगी वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, दोबारा मौत भी नहीं आने वाली है। हमेशा हमेशा का जो ठिकाना है उस ठिकाने पर गौर कीजिए कि हमें रहना कहाँ है, उसकी हमने तैयारी क्या किया है। कि कोई सुन्नी भला दोज़ख के तरफ क्यों जाए, गौस ख्वाजा व रज़ा खान न जाने देंगे, हम मुसलमान हैं ईमान न जाने देंगे, हम मुसलमान हैं ईमान न जाने देंगे। और अगला शेर देखिए, दिल में रोशन है तेरे दम से चिराग सुन्नत, दिल में रोशन है तेरे दम से चिराग सुन्नत, आला हज़रत तेरा एहसान न जाने देंगे, हम मुसलमान हैं ईमान न जाने देंगे। ईमान कहते किसको है? अल्लाह को बगैर देखे मानना कि अल्लाह एक है, रसूल को आखिरी नबी तस्लीम करना मानना। उसके बाद जब कोई मर जाते हैं तो ये भी ईमान रखना है कि हम फिर जिंदा किए जाएंगे, फिर कब्र में सवाल भी होगा, आखिर में ठिकाना भी होगा, मैदान क़यामत भी होगा, हश्र का दिन भी होगा, हिसाब किताब भी होगा। इन सारी बातों को जब कोई मान लेते हैं तो वो ईमान वाला कहलाते हैं। तो ईमान को बचाना है, अमल को संवारना है, अमल ठीक करना है, ईमान को सलामत रखना है। ये नहीं कि अगर हम रोजी कमाने निकले, दो पैसा अगर ज्यादा मिल रहा है हमें और ईमान का सौदा करना पड़े, वहां सौदा कर लिए तो ईमान गया।
روزی چاہے کم کمائیے یا زیادہ کمائیے، کبھی ایمان کا سودا مت کیجیے۔ ایمان ہی سب کچھ ہے، ایمان ہے تو آپ ہیں، ایمان نہیں تو سب بیکار ہے۔ کہ ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے، دل میں روشن ہے تیرے دم سے چراغ سنت، اعلی حضرت تیرا احسان نہ جانے دیں گے۔ ہم حسینی ہے جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، ہم حسینی ہے جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جان دے دیں گے مگر ایمان نہ جانے دیں گے۔ عشق اخلاق وفا شان نہ جانے دیں گے، ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ المختصر سنتے چلیے، وقت بہت کم ہے، اس لیے کہ اس میلاد شریف سے ایک جگہ بھی اور جانا ہے۔ بہت کم وقت میں آپ سے میں کچھ بیان کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے لوگوں، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی ذکر کرتا ہے یہ اس کا فائدہ ہے، اس لیے کہ 313 کے کاندھے پر اسلام جب سفر کر رہا تھا بدر کے میدان میں تو وہاں خوف نہیں کھایا، سامنے تعداد ہزاروں کی ہے اور اسلام والے صرف 313 ہے، بدر کا میدان ہے اور وہاں لڑنے کے لیے مسلمانوں کے پاس تلوار نہیں تھی، نہتہ تھے۔ ایسے عالم میں اسلام ایسے کے کاندھے پر جب سفر کر رہا تھا تو اسلام سے پوچھا گیا، اے اسلام کیا تجھے خوف نہیں آیا؟ کیا تو خوف نہیں کھاتا تھا کہ آج اگر تیرا ماننے والا ختم ہو گیا تو پھر تجھے مانے گا کون؟ اسلام کہتا ہے کہ بدر کے میدان میں جب 313 کے کاندھے پر سفر کر رہا تھا، پوری دنیا کفر کے عالم میں تھی، تب تو میں خوف نہیں کھایا تو آج کیا خوف کھاؤں گا؟ اس لیے اسلام کو جو مانے گا، اسلام کے قانون پر جو چلے گا، اسلام کے کہنے پر جو چلے گا، یہ اس کا فائدہ ہوگا، اگر نہ چلے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسلام کہتا ہے تم پر ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے فائدہ اس کا ہے کہ اللہ بھی اس سے خوش ہے، رسول پاک بھی اس سے خوش ہے اور آخر میں اس کو جنت ٹھکانا ہوگا۔ اور اگر اسلام اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے، رسول پاک بھی اس سے ناراض ہے، آخر میں ٹھکانا بے نمازیوں کا جہنم میں ہوگا۔ تو میرے دوستو، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، کوئی اللہ کے حمد و ثنا کرتا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے والوں کی اس میں فائدہ ہے اور جو نہیں کرتا ہے اس کا نقصان ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم پر یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ نماز تم پر فرض ہے، ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں یہ فائدہ ملے گی اور نہ پڑھو گے تو تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا، اور جب تک تم اس نماز کو قضا پڑھ کے ادا نہیں کرو گے تب تک تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا رہے گا اور مرو گے اسی دروازے سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔
उस नाम को मिटाना चाहते हैं तो जितनी नमाज़ें कज़ा है उसको पढ़ के अदा कीजिए, और जो ज़िंदगी बची है उसको भी पढ़िए, तब जाके वहाँ से नाम हटेगा। आज शादियों में क्या होता है, शादियों के महफिल में क्या होता है, अक्सर लोग मिलाद शरीफ तो कर लेते हैं, तकरीर भी सुन लेते हैं, नात शरीफ भी सुन लेते हैं, खूब पैसा बांटते हैं, लुटाते हैं, लेकिन यही लोग मिलाद ख़त्म होने के बाद गाना शुरू कर देता है, नाचना कूदना शुरू कर देता है। तो मेरे दोस्तों, तुम अगर इस्लाम को मानते हो तो इस्लाम तुम्हें ये नहीं कहता है कि तुम कभी अच्छा काम करो कभी बुरा काम करो, नहीं। इस्लाम हमेशा तुम्हें दावत देता है कि तुम नेकी के तरफ आगे बढ़ो। कुरान कहता है अहसनो अमल, अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दुनिया में जो भेजा है वो नेक अमल करने के लिए भेजा है, और सिर्फ नेक नहीं, बहुत अच्छा नेक काम करने के लिए भेजा है, ज्यादा से ज्यादा नेकी कमाने के लिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। ये मुख्तसर सी जिंदगी दे करके रब ने कहा अच्छा अमल करके आओ, नेकी कमा करके आओ, तुम्हारे लिए निजात का दरवाजा खुला है। अगर अमल करके नहीं जाओगे, नेकी कमा के नहीं जाओगे, फिर कब्र में भी रुसवाई है, कब्र में भी परेशानी है, मैदान माशर में भी परेशानी है। अगर जन्नत ना मिली तब सोचो क्या हाल होगा। इस्लाम हमें दावत ये दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करो। आज हमारी घर की या आपके घर की औरतों में क्या हाल है कि मिलाद शरीफ में मिलाद सुन लेते हैं, कुरान खानी में कुरान खानी भी कर लेती है, और जैसे ही मिलाद ख़त्म हुई यही लड़कियां यही औरतें अब क्या करती है, गीत गाना शुरू कर देती है, नाचना कूदना शुरू कर देती है, रात भर गुलगुल्ला बनाने के चक्कर में जग जाती है। लेकिन यही औरत फजर के वक्त सोई रहती है, ना इसको नमाज से मतलब रहता है, ना इसको रोजे से मतलब रहता है। ऐ मेरी माँ बहनों, जरा तुम भी गौर करो, इस दुनिया में तुम आए हो, एक दिन तुम्हें मरना होगा। जब तुम मर के कब्र की दुनिया में जाओगे, वहां गुलगुल्ला काम नहीं आएगा, रज्जगा काम नहीं आएगा, माँ बाप काम नहीं आएंगे, रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। अगर काम आने वाली कोई चीज है वो आपका अमल है, वो आपका किरदार है, वो आपका इखलाक है। अगर इस दुनिया में रह करके अच्छा अमल कर लेते हैं, नेकी कमा लेते हैं, तो कब्र की दुनिया में पहुंचेंगे तो सुकून की जिंदगी मिलेगी। और अगर नेकी नहीं कमाते हैं, नमाज गायब हो रही है, नमाज फजर भी गायब है, इबादत से दूर हो रही हो, तो तुम्हें याद रखना कब्र में जाके बहुत पछताना होगा। वहां तुम्हारा कोई रज्जगा काम नहीं आएगा, वहां तुम्हारा कोई बेटा या बेटी काम आने वाले नहीं है। अगर तुम्हारा कोई काम आने वाली चीज है वो आपका अमल है कि इस दुनिया में रह करके तुमने अल्लाह को कितना याद किया है, अल्लाह का जिक्र कैसे किया है, नमाज कब पढ़ी है, रोजा कब रखी है, इबादत कब की है, यही तुम्हारा वह काम आने वाली चीज है। बाकी जो तुम शादियों में गीत गाने में नाचने कूदने में, और औरतों का हाल क्या है कि अपने पर्दे से बेपर्दा हो जाती है। अरे मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेराज की रात में जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो क्या देखते हैं, दोज़ख में कुछ औरतों को उल्टा लटका करके उसके सर को खौलाया जा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब फिर वापस आए तो मेरे आका रोने लगे। हजरत फातिमा पूछने लगी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप रोते क्यों है? मेरे आका फरमाते हैं, हे फातिमा, मेराज की रात में मैंने जो औरतों को अजाब देते हुए देखा है, औरतों पर अजाब होते हुए देखा है, उस अजाब को देख करके मैं रो रहा हूँ। ए मेरे दोस्तों, हजरत फातिमा पूछने लगी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो अजाब कैसा था? मेरे नबी फरमाते हैं, ए फातिमा, कुछ औरतें जो है जहन्नम में उल्टा लटकाया गया है और उसके
सर को खौलाया जा रहा है। हजरत फातिमा पूछने लगी, ए अब्बा हुजूर, ए नबियों के सरदार, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जरा खुलासा किया जाए मेरे आका, जरा बता दिया जाए मेरे आका, उन औरतों को जहन्नम में उल्टा क्यों लटकाया गया था? मेरे नबी फरमाते हैं, ओ फातिमा, अगले नबी की उम्मतियों में कुछ औरतें ऐसी थी जो अपने सर को खोल करके, यानी बरहना सर हो करके गैर मर्दों के सामने जाया करती थी, घूमा करती थी। उसके बदले में अल्लाह ताला ने उन औरतों को जहन्नम में उल्टा लटका करके उसके सर को खौला रहा है, खौलाने का हुक्म दिया है। ऐ मेरे दोस्तों, वह औरत सिर्फ सर खोल के जा रही थी। आज की औरतों का हाल क्या है? पूरा बदन खोल खोल के ये वलीमा में घूम रही है। आधा बदन कपड़ा पहनती है, ना सर पे दुपट्टा रहता है, ना बदन उसका ढका रहता है, आधा जिस्म कपड़ा पहन के वलीमा में ये घूमने लगी है। सर का दुपट्टा मुफलर बना चुकी है। इनका क्या हाल होगा? ए मेरी माँ बहनों, तुम अपने ऊपर तो कम से कम तरस खाओ। अगर तुम इसी हाल में मर गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हारा क्या सजा होगा? जरा गौर तो करो। उन औरतों का ये हाल था कि सिर्फ लंगे सर गैर मर्दों के सामने जाती थी तो उसको जहन्नम में उल्टा लटकाया गया है और उसका सर खौलाया जाता है। और तुम तो वलीमा में पूरा बदन खोल के जाती हो, पूरा सर खोल के जाती हो, आधा बदन के कपड़ा पहन के जाती हो, आधा जिस्म के कपड़ा पहन के घूमती हो। जरा गौर करो कि कब्र की दुनिया में तुम्हारा क्या हाल होने वाला है, मैदान माशर में तेरा क्या होगा। और अल्लाह अगर नाराज हो गया तो तुमको जहन्नम में कौन सा सजा दिया जाएगा? जरा अपने ऊपर तो गौर करो, अपने ऊपर तो ध्यान दो। ऐ मेरे दोस्तों, आज शादियों में देखिए लोग कहता है इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, और उसी के घर की शादी में देखिए अब इस्लाम जिंदाबाद नजर नहीं आ रही है। इसलिए कि लोग शादियों में क्या करते हैं, अक्सर डीजे बजाते हैं, अक्सर गाना गाते हैं, अक्सर नाचते कूदते हैं। उसी में लड़का भी है, लड़की भी है, औरत भी है, मर्द भी है। अब पर्दे से सब बाहर हो रहे हैं, हरामकारियां आम हो रही है, लोग बदतमीजी बेहयाइयां आम कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जरा मेरे नबी का फरमान तो देखो। मेरे नबी फरमाते हैं जो औरतें सर खोल के अगर गैर मर्दों के सामने जाए उसको उल्टा लटका के जहन्नम में सजा दिया जाता है। ऐ मेरे दोस्तों, जहन्नम में जाना ही ये सबसे बड़ा अजाब है, लेकिन उसमें भी उल्टा लटका करके सर को खौलाया जा रहा है, ये कम अजाब नहीं है। तो मेरे दोस्तों, कुरान कहता है अहसनो अमला, तुमको दुनिया में बहुत अच्छा अमल करने के लिए, बहुत नेकी कमाने के लिए भेजा गया है। तुम यहाँ दुनिया में इम्तिहान गाह में हो, अगर इसमें फेल हो गए तो तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा, और इसमें अगर पास हो गए तुम्हारा यहाँ भी सबर जाएगा, वहाँ भी सबर जाएगा। तो मेरे दोस्तों, जब तक जिंदा है हमेशा इस बात पर गौर कीजिए कि हमें मर के खुदा के सामने जाना है, अपने खुदा को मुंह दिखाना है, अपने खुदा के सामने जाके हिसाब देना है। हर एक जिंदगी का हिसाब, पल पल का हिसाब, जर्रे जर्रे का हिसाब, क्या खाए हैं इसका हिसाब, क्या बोले हैं इसका हिसाब, कहाँ गए हैं इसका हिसाब, और कितनी नमाजें पढ़े हैं, कितना छोड़ के आए हैं, कहाँ इबादत किए हैं, कहाँ नहीं किए हैं, ये सारी जिंदगी का हिसाब अल्लाह की बारगाह में जाके देना होगा। उस दिन मैदान माशर में नामे आमाल खुलेगा। एक माँ होगी, एक बाप होंगे, एक रिश्तेदार होंगे, एक खानदान होंगे, पूरी दुनिया के लोग वहां पर मौजूद होंगे। हजरत आदम से लेकर के ता कयामत तक सारे के सारे लोग वहां पर मौजूद होंगे। ऐसे आलम में एक एक करके नामे अमाल खोला जाएगा कि कौन बंदा कहाँ छुप के गुनाह किया है, कहाँ पर नेकी किया है, सारी बातें उसको दिखाया
उठाया जाएगा। मेरे दोस्तों जरा सोचो कि पूरी दुनिया के सामने हमारी और आपकी करतूत खोली जाएगी, वहां क्या हाल होगा। तो इसलिए हम सबको शादियों में भी और अपने घर में भी इस बात पर ध्यान रखना है कि हमारी घर की औरत हो या हमारे घर के मर्द हो, कोई इस्लाम के खिलाफ कभी कदम ना उठाए। इस्लाम जो कहता है उस पर अमल करने की हमेशा कोशिश करें। हम मरेंगे भी तो इस्लाम के नाम पर, हम जिएंगे भी तो इस्लाम के नाम पर। वहां से खबर है दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना सल्लु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हम लोग यहाँ दुनिया में क्या करने आए हैं? अच्छा अमल करने आए हैं। क्या करने आए हैं? नेकी कमाने के लिए आए हैं। जैसे आप सुबह उठ करके रिस्क कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, ऐसे ही दुनिया में जो हम आए हैं तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम नेकी ज्यादा से ज्यादा कमाएं, ताकि वहां हम जन्नत में भी जाए तो आला आला दर्जा मिले। अब कितनी नेकी किसके पास है ये हम तो नहीं बता सकते हैं। खुद अपने आप पर गौर कीजिए कि कितना अच्छा काम करते हैं, कितना खराब काम करते हैं। आपका अमल आपको वहां काम आएगा। इंसान का दुनिया में 3 भाई है, 3 दोस्त है। एक वो जो कहता है कि मेरे भाई जब तक तू जिंदा है तब तक मैं साथ दूंगा। दूसरा दोस्त कहता है कि मेरे भाई जब तक तू कब्र के अंदर नहीं जाएगा तब तक मैं साथ दूंगा। तीसरा कहता है मेरे भाई तू दुनिया में है तो भी मैं साथ हूँ, परेशानी में है तो भी मैं साथ हूँ, मुसीबत में है तो भी मैं साथ हूँ, अच्छा खाएगा, अच्छी जिंदगी गुजारेगा उसमें भी साथ हूँ, और मर जाएगा, कब्र में जाएगा, वहां भी साथ रहूंगा, मैदान महशर में भी साथ रहूंगा। यानी तीसरा भाई कहता है, तीसरा दोस्त कहता है कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजर रही है उसमें भी हम साथ देंगे, और तुम्हारी जिंदगी मुसीबत में है उसमें भी साथ देंगे, तुम्हारी जिंदगी परेशानी में है वहां भी हम साथ देंगे। तो आप ईमानदारी से बताइए सबसे ज्यादा तरजीह किस दोस्त के तरफ देंगे? वो जो कहता है कि मेरे भाई जब तक तू हयात से है, जब तक तू सलामत है, जब तक तू ठीक ठाक है तब तक मैं साथ दूंगा, या फिर वो जो कहता है कि तू मर जाएगा, कब्र की दुनिया में जाएगा वहां तक मैं साथ दूंगा, या फिर वो तीसरे नंबर पर जो कहता है मुसीबत में हो तो भी साथ दूंगा, आसानी में हो तो भी मैं साथ दूंगा, डॉक्टर के यहाँ पहुंचो तो भी मैं साथ दूंगा, नरम बिस्तर पर पहुंचो तो भी मैं साथ दूंगा। तो किस पर ज्यादा ध्यान है, किस पर ज्यादा गौर करनी चाहिए? वो तीसरे नंबर पर, वो तीसरे नंबर के दोस्त पर, वो तीसरे नंबर के भाई पर जो कहता है आंधी चले तो भी साथ, तूफान आए तो भी साथ, रात आए तो भी साथ, दिन आए तो भी साथ, परेशानी आए तो भी साथ, मुसीबत आए तो भी साथ, शादी ब्याह हो तो भी साथ, और परेशानी में मुब्तला हो तो भी साथ, खुशी हो तो भी साथ। तो तीसरे नंबर के जो भाई है यही हमेशा आपके साथ रहने वाले। अब ये तीनों की क्वालिटी जानते कौन है? तीनों के बारे में जानते हैं। ये तीनों दोस्त कौन है? पहला दोस्त वो है, वो आपकी दौलत है। दौलत क्या है? जब तक आपके अंदर सांस चल रही है,
दिल धड़क रहा है, धड़कनें चल रही है, आंखें काम कर रही है, कान सुन रही है, जबान बोल रही है। यानी जब तक आपके जिस्म में जान है, आपकी दौलत कहती है मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी मदद कर रही हूं। ये आपकी दौलत कब तक मदद करेगी? जब तक आप जिंदा है तब तक। मर गए सारी दौलत आपकी खत्म, सारी दौलत आपको छोड़ के जाना होगा। अब ये एक भाई जब तक आप जिंदा है तब तक काम कर रहा है। अब ये भाई कहता है कि तुम मर गए, तुम्हारे साथ हम देना बंद कर दिए। एक भाई यहां से खत्म, दूसरे का नंबर आया। अब ये दूसरा कौन है जानते हैं? दूसरा आपकी औलाद, आपके रिश्तेदार, आपके खानदान, आपके अहलो अकारिब, आपके घर के लोग। ये लोग कब तक आपके साथ देंगे? जब तक आप कब्र में नहीं पहुंचे हैं तब तक। कब्र की दुनिया में जाएंगे, मिट्टी डालेंगे, कहेंगे तेरा मामला तू समझ, मेरा मामला हम समझेंगे। अब तुम्हारी दौलत भी गई, अब तुम्हारे खानदान भी गए, अब तुम्हें वह तन्हा रहना होगा। अब दो दोस्त जो है दम तोड़ चुका है। अब तीसरे नंबर की बारी है। तीसरे नंबर का भाई कहता है ऐ मेरे दोस्त, तेरी दौलत तुझे छोड़ के चली गई, तेरे खानदान तुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मैं वो दोस्त हूं तेरा कि तू जिंदा था तो भी मैं साथ था, तू बाजार में था तो भी मैं साथ था, तू घर के अंदर था तो भी मैं साथ था, तू शादी ब्याह की महफिल में गया था तो भी मैं साथ था, तू मिलाद की महफिल में गया था तो भी मैं साथ था, तू खुशी के महफिल में था तो भी मैं साथ था, तू गम के महफिल में था तो भी मैं साथ था, तू जिंदा था तो भी मैं साथ था, आज मर गया है तो भी मैं साथ हूँ, कब्र की दुनिया में आया है तो भी मैं साथ रहूंगा, हश्र के मैदान में उठेगा तो भी मैं साथ रहूंगा, अल्लाह का करम होगा, जन्नत में पहुंचोगे तो भी मैं साथ रहूंगा, और अगर करम ना हुआ दोज़ख में पहुंचोगे तो भी मैं साथ रहूंगा। ये तीसरे नंबर के भाई हमेशा साथ रहने वाले हैं, कभी साथ छोड़ने वाले नहीं है। ये तीसरे नंबर का भाई जो है हमेशा हमेशा साथ देते हैं। वो तीसरे नंबर का भाई कौन है? तीसरे नंबर का दोस्त कौन है? वह आपका अमाल है, आपका अमल है, आपका किरदार है, आपका इखलाक है। आप जो दुनिया में आके करते हैं वही आपका अमल हमेशा आपके साथ में है। आप यहाँ पर बैठे हैं, अमल साथ में है, नेकी मिल रही है वो भी साथ में है। हाँ, यहाँ से उठ के जाइएगा, अगर बुराई कीजिएगा, गुनाह कीजिएगा, वो भी साथ में रहेगा। यानी अच्छा और बुरा, अच्छा और बदी, नेकी और बदी, ये दो अमल जो है हमेशा हमेशा आपका साथ है। अगर नेक काम करते हैं कब्र में भी सुकून है, मैदान माशर में भी सुकून है, कयामत के दिन भी सुकून है, और अल्लाह ताला करम फरमाएगा, जन्नत में जाएंगे तो आला आला दर्जा मिलते जाएगा। और अगर अमल बद हो गया, अमल खराब हो गया, अमल बुरा हो गया, तब क्या हाल होगा? कब्र में बिच्छू आएगा, कब्र में सांप आएगा, कब्र में आग जलाई जाएगी, वहां तुमको जलाया जाएगा, वहां तुम्हें सांप भी डसेगा, बिच्छू भी डसेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। आपकी माँ होगी आपके घर के अंदर होगी, आपका बाप होगा आपके घर के अंदर होगा, आपके भाई होंगे आपके घर के अंदर होंगे। अब वहां कोई बचाने नहीं जा रहा है। अगर बचाने वाली कोई चीज है वो आपका अमल है, अमल नेक है तो वहां बचाए जाएंगे, अमल खराब है तो वहां बचाए नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे नौजवान क्या करते हैं पता है?
शादियों में रात भर दारू शराब पी लेता है और नाचने कूदने लगता है कि इसको मरना ही नहीं है। बेटा जब मरेगा ना, एक ही दिन की पिटाई में कब्र में समझ में आ जाएगा कि क्या नाचना है, क्या कूदना है, क्या डीजे बजाना है, क्या गाना बजाना है, पहले ही रात में समझ में आ जाएगी कब्र की दुनिया में। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान रखिए कि अल्लाह के सामने जाके हमें जिंदगी भर का हिसाब देना है, वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो अशार समाप्त कीजिए, उसके बाद फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी। जब कोई नमाजी मस्जिद का हो, मस्जिद में रोजाना जाते हैं और जब वो इंतकाल कर जाते हैं तो मस्जिद पूछती है कि अल्लाह, फला बंदा मेरी बारगाह में रोज आता था, आज वो दिखाई नहीं देता है। तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है। पहले शेर को समाप्त कीजिए, फिर मैं मुख्तसर अंदाज में बता दूंगा कि जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी, माबूद भी खुश होता है, महबूब भी राजी, सजदे के लिए सर को झुकाते हैं नमाजी। नमाज पढ़ते हैं ना, पढ़िएगा ना, पढ़ा कीजिए मेरे भाई, नहीं पढ़िएगा कोई सुनवाई वहां नहीं होगा। आपको वहां ये नहीं देखा जाएगा कि तुम किस बिरादरी से हो, किस खानदान से हो, किस रिश्तेदार से हो, कितने अच्छे बिरादरी में पैदा हुए हो, ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। दो ही चीज वहां सामने होगी, एक आपका ईमान, एक आपका अमल, कि नमाज पढ़ के आया है कि नहीं, रोजा रख कर के आया है कि नहीं, इबादत करके आया है कि नहीं, यही चीज देखा जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। सारी चीज बाद में देखी जाएगी। सबसे पहला सवाल मैदान महशर में नमाज के बारे में होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बूढ़ा हो या बुढ़िया हो, सबसे यही सवाल होगा कि नमाज पढ़ के आया है कि नहीं आया है। अगर नमाज वाली लिस्ट मुकम्मल होगी तो आगे हिसाब बढ़ाया जाएगा, और अगर ईमान, ये नमाज वाली लिस्ट खाली हो गई तो सारे अमल के साथ बिगाड़ कर दिया जाएगा। कि जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी, माबूद भी खुश होता है, महबूब भी राजी, सजदे के लिए सर को झुकाते हैं नमाजी। थक जाओगे कहता है ये दरवाजे पे दारोगाए जन्नत, थक जाओगे फिर दोस में आते हैं नमाजी, थक जाओगे फिर दोस में आते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी। तो मेरे दोस्तों, बस मुख्तसर अंदाज में मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कि एक महफिल में, एक मिलाद शरीफ में और मुझे शामिल होना है।
शादी निकाह जो है मेरे नबी की पसंदीदा सुन्नत है। अब निकाह के नाम पर सुन्नत को अदा करने के नाम पर अगर गलत रस्म के तरफ जाएंगे तो फिर इसका हिसाब मैदाने क़यामत में देना होगा। शादी करना मेरे नबी की पसंदीदा सुन्नत है और शादी करने से पहले या अपने बच्चों को शादी दिलाने से पहले इस सुन्नत पर गौर कीजिए कि मेरे नबी की सुन्नत क्या कहती है, कैसे निकाह करना है, कैसे बच्चों की शादी दिलाना है, या बच्चा या बच्ची की निकाह जो करना है वो किस अंदाज में करना है, इसको गौर करना होगा, इसको समझना होगा। आज शादी के नाम पर क्या होता है, इधर लोग निकाह पर आते हैं। कल ही की निकाह में, कल एक जगह निकाह पर आने गए, अभी इधर निकाह का खुतबा चालू किए हैं, उधर बाजा वाला बजाना शुरू किया है और बाराती वाला कहता कि भाई जरा जल्दी करो, उस बजनिया से बजाने वाले से कहो अभी कुछ देर और रुक जाओ, अभी निकाह हो रहा है। जरा देखिए कमीनापन की हद होती है। लाया भी खुद है, घर से लाया खुद है और निकाह के महफिल में कहता है कि कुछ देर और रोकने को हो, बाद में वो अपना काम कर लेगा। तो नादान लाया क्यों था, उसको लाना ही उसके लिए हराम था। शादी में गाना बजाना डीजे और नाचना कूदना ये सब हराम है, तो लाया क्यों है इसी शय को, ये हराम काम किया क्यों। तो शादी में होता है, इधर निकाह हुआ, उधर लड़के हमारे नाचने लगते हैं, हमारी कौम की लड़के जो है नाचने कूदने लगते हैं और कहते हैं आरा हिले, बलिया हिले, छपरा हिले, और कुछ दिन के बाद बेटे का पूरा खानदान हिलने लगता है। आज कहता है आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले, और कुछ दिन के बाद देखिए तो उसका पूरा खानदान हिलने लगा है, पूरा खानदान नाचने लगा है। तो मेरे दोस्तों, आरा बलिया को मत हिलाओ, बल्कि इसको बचाओ और इसको बचा के अपने घर को भी बचा लो। ना बलिया हिलेगा, ना छपरा हिलेगा, ना आपका घर हिलेगा। होता क्या है, एक तरफ कहते हैं कि बलिया हिल रहा है, एक तरफ कहते हैं कि आरा हिल रहा है, और एक तरफ कहते हैं कि छपरा हिलता है, और 10 दिन 20 दिन के बाद पूरा का पूरा खानदान हिलने लगता है, पूरा का पूरा खानदान नाचने लगता है, पूरा खानदान जो है कूदने नाचने गाने लगता है। तो मेरे दोस्तों, इन फहश बातों से बचो, ना बलिया हिलेगा, ना आपका घर हिलेगा। जब आप सिराते मुस्तकीम पर चलने लगेंगे, मेरे नबी की सुन्नत समझकर अगर निकाह करेंगे तो बलिया भी सलामत रहेगा, आपका घर भी सलामत रहेगा, ना आरा हिलेगा, ना आपका घर हिलेगा। लेकिन आप सुन्नत के नाम पर गलत रस्म को अदा करते हैं, उस गलत रस्म से बाज आ जाइए, फिर कोई भी नहीं कहीं हिलेगा। तो निकाह के बाद जो नाचते हैं, कूदते हैं, पटाखा छोड़ते हैं, ये सारी बातें हराम है, इससे बचना है। और नहीं बचोगे तो मैदान माशर में बड़ी सख्ती के साथ आपकी पकड़ होगी, और इसी पकड़ के बिना पर कहीं ऐसा ना हो कि आपका सारा बेड़ा गर्क हो जाए। तो बचना चाहिए, बचिएगा ना। शादियों की महफिल में अक्सर नाच होता है, इससे बचिए। मुसलमान बहैसियत ईमान वाला ये नाचने नहीं आया है, ये कूदने नहीं आया है, ये गाने नहीं आया है। इसको जब भी गाना है तो नबी की शरीयत के मुताबिक नबी का नात गाइए ना, नबी की नात पढ़िए ना, नबी की शान बयान कीजिए ना, खुदा का जिक्र कीजिए ना, हम्द कीजिए ना, पाकी बयान कीजिए ना। जितना गाना है नबी की शान पर, नबी की नात पर के गाना
गाते रहिए, नबी का नाम गुनगुनाते रहिए, नबी का शान, नबी की शान बयान करते रहिए। तो मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब कोई मिल के पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए सलाम पढ़ लीजिए। लाल वाला